ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਬੈਠਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੋ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੇਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਮੇਰਠ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ टीवी वास्ते। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ मेरठ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ हैं। हेमा जी, आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार। धन्यवाद आपका जी, तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। नहीं, आप बताइए जी। मैं धन्यवाद ही आपका दे रही थी कि आपने चैनल के अपने रेडियो के साथ मुझे जोड़ा, और बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको इस कहानी का शुरू से लेके आखिरी तक का हिस्सा बता पाऊँ। जी, तो हेमा जी, जैसे मैंने बोला, जैसे मैं पढ़ता गया इस कहानी को मैं हैरान होता गया, और जब मैं इसका अंत देखा फिर तो हैरान वाकई हो गया कि इस तरह भी हो सकता है। आज के समय में इस हद तक लोग गिर चुके हैं। आपने इसको कवर किया है। मुझे हमें शुरू से लेके लास्ट तक ब्रीफ में बताएं इस कहानी को, तार जोड़ते हैं इस कहानी के कि हुआ क्या। सनी जी, मैं तो यही कहूंगी सबसे पहले कि ये रियल लाइफ में निकलकर कहानी आई है। अक्सर हम इसे पहले पर्दों पर देखा करते थे, लेकिन जब हमने इस कहानी को देखा और इसके अंदर तक पहुंचे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक ये ब्लाइंड मर्डर था, मेरठ पुलिस के लिए चुनौती था। कोई इसमें शिकायत करता नहीं था। दौराला थाना क्षेत्र में एक लड़की की बॉडी मिलती है 19 साल की, जिसकी गर्दन नहीं थी और हाथ कटे हुए थे। जमीन के अंदर उसे गड्ढा में गाड़ दिया गया था। खुदाई के समय ये बॉडी मिली। पुलिस अज्ञात में उसको दफन कर देती है, लेकिन पुलिस ये परेशान थी कि ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है। कोई शिकायत आसपास के जिलों से भी नहीं है। पुलिस ने बहुत इस स्टोरी पर मेहनत करी, और मेहनत करते हुए उस टावर के आसपास के फोन को ट्रैक करा, और वो ट्रैक करने के बाद ये देखा कि जिस दिन ये बॉडी मिली है उससे पहले इस इलाके में कौन कौन से फोन चल रहे थे और कौन से बंद हो गए। जब उन्होंने देखा कि रात 12 घंटे के अंदर ये फोन रेगुलर बात कर रहे थे और उसके बाद ये बंद हो गए, तो उसमें कुछ कॉल्स लुधियाना चल रही थी। तो लुधियाना चेक करते करते पुलिस पहुंची और उसे पता चला कि एक ये 19 साल की लुधियाना की बच्ची थी जिसको यहाँ लेकर आया गया। वो बीकॉम कर रही थी और वहां पर जॉब करती थी। उसके फादर एक ट्रक ड्राइवर थे। उसके पेरेंट्स से संपर्क किया तो पर्दा उठता चला गया।
एक लड़का जो उसे अपने प्रेम पाश में, मोह पाश में फांसता है और अपना नाम बदल देता है। लड़की हिंदू समुदाय से थी, उस लड़के ने अपना नाम हिंदू बताकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए और सोशल मीडिया के जरिए पास आता चला गया। उसके बाद उसको उसने बोला कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूँ। लड़की भी नई उम्र थी, 19 साल की उम्र थी, तो इस समय तो प्यार परवान चढ़ जाता है। उस लड़की ने उसके साथ घर से भागने का फैसला करा। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन वो चुपचाप घर से 15 तोले सोना और पैसा लेकर निकल गई। उसके बाद अपने मेरठ आके उसने लोहिया नगर का, वो लड़का था गांव का रहने वाला, दौराला थाना क्षेत्र में एक कमरा किराए पर लिया और कमरा किराए पे लेने के बाद उस लड़की को वहां रखा अपने साथ, परिवार से नहीं मिलाया। चांद रात की 2019 की बात बता रही हूँ, मई में लड़की को लेके आया था जी। और 14 जून को उसने उसका मर्डर करा। चांद रात वाले दिन अपने पेरेंट्स से मिलवाया। पेरेंट्स से मिलवाने के बाद में उस लड़की को ये पता लगा कि जिसको मैं अपने धर्म का समझ के प्यार कर रही थी, वो लड़का मेरे धर्म का नहीं है बल्कि दूसरे धर्म का है। उसने विरोध करा, उसने एक प्रेशर बनाया कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। उसे लगा राज खुल जाएगा। उसने अपने घर की भाभी, अपनी लेडीज को लेके अपने साथ 5 लोगों को जोड़ के 6 लोगों ने ये मर्डर करा। लड़की को नशे की गोली दी गई कोल्ड ड्रिंक के अंदर और अपनी भाभी को लेकर वो दौराला के जंगलों में चला गया। उस जंगल में जाकर भाभी ने उसके शरीर से कपड़े उतार दिए और निर्ममता से 5 लोगों ने मिलकर उस लड़की की हत्या कर दी, जिसमें उसके अभी तक सिर और हाथों का पता नहीं है। शरीर को गड्ढे में गाड़ दिया गया और जिसके शरीर और हाथ एक तालाब में, कहा जा रहा है, उसको बहा दिया गया, जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। जब कल उसके पेरेंट्स लड़की के मेरठ पहुंचे तो देखने वाला जो दृश्य था, जो भी व्यक्ति था, उसके आंखों से आंसू छलक गए। एक माँ जैसे ही देखती है हत्यारे को जो अपना धर्म परिवर्तन करके उस लड़की को लेकर आता है, और उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका ये थी कि 1 साल तक लड़की के पेरेंट्स को ये नहीं पता चला कि लड़की उनकी इस दुनिया में है नहीं, जो 2019 जून में उसका मर्डर हो चुका है। वो सोशल मीडिया पर, उसके व्हाट्सएप पर उसकी पिक्चर्स बदलता रहता था और परिवार वालों से बात करता तो रहता था। इसका तो लगता मतलब था कि हमारी जी, लड़की खुश है, कोई बात जी हेमा जी, इसका मतलब ये है कि नहीं। लड़की का फोन इनके पास रहा होगा और उसके फोन के जरिए उसको फोन को एक्टिव रखा है इन्होंने। हाँ, लड़की के फोन को उन्होंने एक्टिव रखा 1 साल तक। उसकी डीपी बदल बदल के परिवार से व्हाट्सएप पर चैट करते रहे, तो परिवार ने सोचा जो हमारी लड़की को करना था ठीक है, उसने कर लिया। अब हमारी लड़की खुश है तो हमें इसमें अब आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उनको मेरठ पुलिस से पता चला कि उनकी लड़की का मर्डर हो चुका है, पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद जब वो मेरठ आए, जैसे ही उन्होंने साकिब को देखा तो उसके माँ और भाई से रहा नहीं गया और उन्होंने मेरठ की पुलिस लाइन में उन पर दे दनादन थप्पड़ लात घूसों की बरसात कर दी। उसके बाद उसको लड़की के तालाब में सर और हाथ खोजने के लिए पुलिस लेकर जाती है। साकिब इतना शातिर था कि उसने पानी का बहाना बना के गाड़ी रुकवाई रास्ते में और पुलिस की पिस्टल लेकर फरार हो गया। ये ओह! पूरा फिल्मी सीन आपको लग रहा होगा कि एक तरीके से हाँ, क्रिएट हो रहा है। हाँ। फिर उसने पिस्टल निकाली और एक सिपाही पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किए, जो उसके 4 गोली पैरों में लगी और उसके बाद साकिब को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब एक तरीके से ब्रूटल मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर था, जिसका ना कोई कंप्लेनर था ना कुछ था। पुलिस ने अपने अथक प्रयास से 1 साल बाद इस केस को खोला है। जी हेमा जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन जितने सरल तरीके से आपने बताया वो तो समझ में आ ही गया। लेकिन मेरा सवाल है कि ये तो एक प्रेमी था, पर क्या कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो, जो बहुत ही जबरदस्त लोग जो क्राइम में फंसे होते हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते? तो आपको क्या लग रहा है कि ये आदमी एक के बाद एक इतना कुछ करता गया? क्या इसका कोई रिकॉर्ड था, पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये ऐसा ही था? जहाँ देखिए आप, जी सनी जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि इसको अगर हम लव जिहाद की संज्ञा दें तो वो कहना गलत नहीं होगा। ये लोग ऐसे हैं जो रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं और कम उम्र की लड़कियों को फंसाते हैं। घर से वो लोग पैसा लेकर आती हैं और उसके बाद इस तरीके से क्राइम कर देते हैं। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में है कि कोई पहली लड़की थी या इससे पहले भी वो इस तरीके के काम कर चुका है, कितने लोगों के साथ उसका जुड़ाव रहा है, किसके साथ फ्रॉड करा है, किसके साथ
किसको मौत के घाट उतार दिया। ये भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर जी। और वैसे भी देखा जाए, ये जो समझ में आ रहा है, ये लेट 20s में है, वो लड़की 19 साल की थी, और ये तो बहुत मैच्योर आदमी था। वो बच्ची बेचारी, जैसे आपने बोला कि अभी उसके नया नया जैसे शुरुआत होती है, तो समय ऐसा होता है एज में लड़कियों के खास तौर के कि इमोशनल बहुत होती हैं, तो वो सब कुछ एकदम सब कुछ छोड़ सकती हैं अपने प्रेमी के लिए, उसको जिसको वो चाहती हैं। लेकिन ये आदमी कुछ और ही प्लान करके बैठा हुआ था। लेकिन जिस तरह से उसको काटा गया, उसका टैटू वाला जो हिस्सा था उसको छुपाने के लिए कि टैटू का हिस्से से कहीं पता ही ना चल जाए, प्रूफ ना मिल जाए, कितना प्लान करके वो मर्डर हुआ, और फिर लेडीज का साथ, उसका साथ देना हैरानगी की बात है। और सबसे बड़ी बात जो भी आपने बताई कि इससे यहां खत्म नहीं, पुलिस जब उसको लेके जा रही है, पुलिस की पिस्टल छीन के फिर भाग रहा है। मतलब जी। ये आदमी किस हद तक जा सकता था, जा सकता है। ये तो चलो एक लड़की की हत्या हुई जी और ये पकड़ा गया है अभी, तो ऐसे तो इसको जैसे ये तो क्या कर सकता था, आने वाले कितनी लड़कियों को बर्बाद करता है ये। जी, अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे लिए कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये पहली लड़की हो सकता है, इसका निशाना और भी लड़कियां रही हों, क्योंकि 18-19 साल की उम्र जो होती है, ये किशोर अवस्था के बाद वाली उम्र होती है। इसमें प्यार कहते हैं अंधा होता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। जी। तो उसे अपना सिर्फ प्रेमी दिखाई दे रहा था, जो मीठी मीठी बातें करके, जिसने अपना नाम परिवर्तन करके, अपना धर्म परिवर्तन करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। एक ये बहुत बड़ा घिनौना काम है। जिस तरीके से लड़की का आप ये देख सकते हैं कि प्रेम में पागल थी और उसने अपना हाथों पे उसका नाम गुदवा रखा था, ओ, अमन। और उसी को उसने काटा, उसी उसका को काटा। नाम गुदवा रखा था कि हाँ, उस और उन हाथों को कि कहीं मेरी पहचान, मतलब उस लड़की की पहचान ना हो जाए। उन हाथों को कहाँ उसने फेंका, कहाँ डाला उसके सिर को, पुलिस अभी तक उसे बरामद नहीं कर पाई है। बरामदगी के बाद शायद उसके परिवार को ये शांति मिल जाए कि पुलिस ने काम करा। लेकिन परिवार ये कह रहा था कि अब ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, समाज में कोई उनका स्थान नहीं है। ऐसे जो घिनौने कृत्य कर रहे हैं, ना जाने वो आगे इस गैंग को कितना बढ़ा ले, कितने बच्चियों के साथ वो इस तरीके से कृत्य करे, इन्हें जीने का अधिकार नहीं है। थैंक यू हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बात करने का पर्पस सिर्फ इतना ही था, ज्यादा करके ये स्टोरी तो नो डाउट अपने आप में एक डिस्कस करने वाली थी कि माँ बाप को भी ये समझ में आए, और जो बच्चे कोई सुन रहे हो प्रोग्राम उनको भी समझ में आए कि ये जो उम्र है बच्चियों की, खास तौर पे अगर देखें तो ये उम्र है, आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया है, आजकल जिस तरह से बच्चे जुड़ रहे हैं, कोई कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ, तो कितना आसान है अपने आप की आईडी छुपा के किसी को भी वर्गला लेना, किसी को भी अपने जाल में फंसा लेना। तो आदमी को कितना ज्यादा अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ये इस स्टोरी से ये भी हमें समझ में आता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये माँ बाप की आंख खोलने वाली स्टोरी है कि हर समय आजकल आप देखिए, छोटा बच्चा हो चाहे नई उम्र का बच्चा हो, सोशल मीडिया पर रहता है। तो माँ बाप अपने बच्चों को, ठीक है सोशल मीडिया है तो अगर उसकी अच्छी बातें भी सामने आती है तो खराब परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। तो माँ बाप को नजर रखनी चाहिए बच्चों की एक्टिविटीज पर, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके के उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। शायद अगर वो थोड़ी सी मेहनत अपने बच्चों के साथ कर ले तो समाज में ऐसे लोग घिनौने कृत्य को नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। अभी भी हालांकि बड़े सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी आईडी बदल के, अपने आप को छुपा के किसी ना किसी तरह से लोगों को फंसाने में कामयाब हो रहे हैं। तो इसका एक ही हल है कि बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और जिस परिवार ने जब बच्ची खोई है, पैसा तो चलो गया जो हुआ, लेकिन जिस तरह से उनकी बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, अब उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, तो ये तो हम क्या समझें। पर बड़ा दुख लगा ये सारी स्टोरी समझने के बाद। तो थैंक यू सो मच हेमा जी, आपसे फिर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।